is a structured discussion and will assess your abilities to answer questions surrounding the perinatal mental health. You will be assessed using the following domains: patient safety, communication with the colleagues, information gathering, applied clinical knowledge. You are the registrar on call or labor ward this weekend. A nurse on the postnatal floor had asked whether you can attend a review a patient which is concerned about. The patient had an emergency C-section 3 days ago. She's still an inpatient because the baby is receiving antibiotics related sepsis. ओके मैं स्टार्ट करूं जी जी स्टार्ट करें। Okay, Assalamu alaikum. My name is Dr. Sidra. I'm one of the exam candidate. I have read the scenario and I'm ready for the structured discussion. The answer of my first question is differences between baby blues and postnatal depression. So baby blue is a self-limiting and transient condition that develop in first 12 days postpartum without any history of depression, and it involves only and labile mood and anxiety and relief with sleep and rest. And the postpartum depression is a severe form severe form which is non-psychotic depressive illness that involve low mood, low energy, and altered sleep, and it may have a previous history of depression, any antenatal depression, and and it and the patient may harm the baby or herself. And this form of depression may involve admission to the hospital. ओके सेकंड Okay, क्वेश्चन। you are now think she may develop purpura sepsis. What is the feature of purpura sepsis? Pyrrhopsychosis. So the purpura psychosis is has an acute presentation, where the patient presents with delusions, hallucinations, and loss of insight. And and here it is a psychiatric emergency and involve admission and urgent psychiatric review, antipsychotic medications, and electroconvulsive therapy. What are the risk factors for the development of purpura psychosis? Risk factors are history of bipolar disorder or history of psychosis in the patient or family. How will you assess this patient now? So I will admit this patient as she is already admitted, so I keep her admitted and and have urgent psychiatric review, um, uh, and start anti psychotic medications, um, and depend upon her condition if electroconvulsive therapy is required. How will you manage her now for the diagnosis to the family members and the patient, and tell about the risks that it may harm that she may harm herself or her baby. So she need to be keep admitted, and um, uh, according to that, we will start mood stabilizers or antipsychotic therapy or anti electroconvulsive therapy. That's it. ओके बेटे मैनेजमेंट रिपीट कर दें, आपकी आवाज कट गई थी बीच में से। मैम आवाज आ रही थी? जी जी मैनेजमेंट आपकी जो है ना वो कट गई थी, मैनेजमेंट रिपीट कर दें जरा। I will offer support to my patient. I will tell the patient and the family about the diagnosis, and to the family. I will offer support to the patient. I will explain the diagnosis patient, and also I will keep her admitted and have an urgent psychiatric review, and start antipsychotic medications, and if needed, electroconvulsive therapy. Now, जी जी आई है लेकिन काफी ब्रेक होके आई है। दैट्स इट, और इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग। सबसे पहले उसने कहा कि सीधा जब आप एंटर होते हो ना तो आपने ग्रीट करना है, आप बैठ जाते हो जब
तो फिर आपने खामोशी से पढ़ना है, ऊंची ऊंची आवाज से नहीं पढ़ना केस को, ठीक है। आपने अपने दिमाग में ठीक है। उसको पढ़ना है कि ये केस स्ट्रक्चर डिस्कशन है। अच्छा, फिर आपने सिनेरियो पढ़ लिया, फिर आपने सारे सवाल देख लिए, फिर अपने दिमाग में, यानी 2 मिनट्स में आपने ये सारा कुछ करना है कि आपने अपने दिमाग में शॉर्ट लिस्ट कर ली सारी चीजें कि मैंने कैसे अपने इस टॉपिक को प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो पहला सवाल जब ठीक आपने पढ़ा कि पेशेंट, नर्स कह रही है कि इसको है जी बेबी ब्लूज, लेकिन आप कहती हैं ब्लूज है लेकिन नर्स कहती है जी डिप्रेशन है। तो वो उन्होंने आपसे डिफरेंसेस पूछे कि दोनों के डिफरेंसेस क्या है। तो जो आपने डिप्रेशन का डिफरेंस बताया ना, वो उसमें साइकोसिस भी आपने बता दिया, ठीक है। बेबी ब्लूज में कुछ भी नहीं होता, पेशेंट टीयरी होता है, जज्बाती हुआ हुआ होता है, लेकिन उसकी कोई भी चीज ना उसकी ना बेबी की इफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। मैक्सिमम वो बिल्कुल सही चल रहा होता है, वो अपने काम भी कर रहा होता है, बच्चे के काम भी कर रहा होता है, लेकिन वो टीयरी होता है, इमोशनल हुआ हुआ होता है, इजीली ट्रिगर्ड होता है, ठीक है। जो डिप्रेशन वाला पेशेंट है ना, वो है जिसकी नींद जाएगी, खाना पीना जाएगा, जो अपनी केयर छोड़ देगा, बट हार्मफुल नहीं है ना अपने लिए ना बच्चे के लिए, ठीक है। बेबी को भी थोड़ा थोड़ा निग्लेक्ट करेगा लेकिन उसको हार्म नहीं करेगा, जो डिप्रेस पेशेंट है, ठीक है। और जो साइकोटिक पेशेंट है ना, वो हेलुसिनेट करेगा जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, और वो हार्मफुल है, वो सुसाइडल होमिसाइडल वो दोनों काम कर सकता है, ठीक है। ये मोटी मोटी बिल्कुल बातें। बेबी ब्लूज इन सब का ऑनसेट डिफरेंट है, इन सब की रेजोल्यूशन डिफरेंट है, इन सब का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, कॉजेज डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट डे वो कहते हैं कि वो साइकोसिस में चली गई है। अब फीचर्स क्या है साइकोसिस के, ये हमने डिस्कस कर रहे थे। रिस्क फैक्टर्स ऑफ परप्यूरल साइकोसिस क्या है, ये अभी हम कर लेते हैं। पहले बाइपोलर डिसऑर्डर की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री है परप्यूरल साइकोसिस की, ये पूरी की हमें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, एसएस एडमिशन का आपने कहा बिल्कुल ठीक था। फिर इसमें ना मैनेजमेंट में आपने एक लफ्ज लाजमी बोलना होता है, पेरीनेटल मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, और दूसरा लफ्ज जो है ना स्पेशल केयर बेबी यूनिट, ठीक है। जो मेंटल हेल्थ वाले लोग हैं ना, उनके बच्चे अस्पतालों में उनके पास ही रहते हैं, लेकिन वो दूसरी किसी स्पेशल केयर बेबी यूनिट्स में होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आ गई है। ये देखो, जी मैडम। यस मैडम। जी जी, अब ये देखते जाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेबी ब्लू ये कि दे अफेक्ट 50% ऑफ द मदर्स, दे आर ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस शॉर्टली आफ्टर द डिलीवरी, दे आर एक्सपीरियंस 3 to 5 days आफ्टर द डिलीवरी, शॉर्ट लिव्ड है, रिक्वायर सपोर्टिव थेरेपी ओनली। अब ये देखो डिटेल क्या है। 2 to 3 days postpartum, मोर कॉमन इन फर्स्ट डिलीवरी। अब ये क्या है, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिक्रीज कंसंट्रेशन, टीयरफुलनेस, इंसोम्निया, क्राइंग स्पेल्स, ट्रांजिएंट है, कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। डिप्रेशन का ऑनसेट भी 2 to 3 days है, सिम्टम पीक करते हैं 4 to 5th डे में, ठीक है। इंसिडेंस क्या है, 8 to 15%, रेकरेंस है इसकी, ब्लूज की नहीं है, डिप्रेशन और पोस्टमार्टम साइकोसिस की रेकरेंस है। जब वो करेक्टर्स पूछ रहे हैं ना, तो ये तकरीबन सारे फीचर्स, 5 फीचर आपने लाजमी बताने, ठीक है। डिप्रेशन में सोमैटिक फंक्शन चेंज हो जाता है। सोमैटिक फंक्शन जो मैंने आपको कहा, पेशेंट का खाना पीना, सोना, उठना, चीजों में दिलचस्पी, बच्चे में इंटरेस्ट, अपनी रिकवरी में इंटरेस्ट, सारा खत्म हो जाता है, ठीक है। फीलिंग ऑफ गिल्ट है, इंटेंस इरिटेबिलिटी है, नो बॉन्डिंग विद बेबी, अनएबल टू केयर फॉर द बेबी, ठीक है। यही मैंने आपको मुख्तसर अल्फाज में समझाया था कि वो अपने और बेबी का ख्याल रखना छोड़ देती है, लेकिन वो नुकसानदेह नहीं है ना अपने लिए ना बच्चे के लिए, ठीक है। इट विल रिजॉल्व इन 2 weeks। इफ डजेंट रिजॉल्व और या सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, तो फिर आपको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देनी पड़ेगी या एसएसआरआई देने पड़ेंगे, ठीक है। पोस्टमार्टम साइकोसिस कैन अपीयर विद इन 2 weeks ऑफ डिलीवरी। ये जो सवाल था जब उन्होंने पूछा कि उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, 0.1% इसका इंसिडेंस है, 25% रेकरेंस है। ये इसी तरह तरतीब से सुना दो एग्जामिनर को, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज डिग्री ऑफ एंजाइटी, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनिया, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, एक्सप्रेशन ऑफ डिल्यूजन, एंड अ विश टू सेल्फ हार्म और हार्म टू बेबी, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट डायरेक्ट है, एसएसआरआई, टीसीए, न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशंस, ठीक हो गया। अब उन्होंने यही आपसे पूछा, ये आपने उनको बता दिया, 1 in 1000.1 हो गया, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, तो यही मैंने आपको कहा कि प्रीवियस डिलीवरी किसी के बाद अगर परप्यूरल साइकोसिस की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली परप्यूरल साइकोसिस, या अभी ट्रोमेटिक बर्थ हुई है, ये हमने मिस कर दिया था। पर्सनल हिस्ट्री ऑफ बाइपोलर, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अपनी हिस्ट्री साइकोसिस, बाइपोलर, स्किजोफ्रीनिया, और फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ स्पेशली परप्यूरल साइकोसिस, प्लस अभी कोई ट्रॉमा, बर्थ मतलब ट्रोमेटिक बर्थ अभी अगर हुई है, ठीक है। क्योंकि इमरजेंसी सिजेरियन हुआ है ना, तो शायद वो लेबर में थी, कितने एग्जामिनेशन हुए, कितनी देर वो लेबर में थी, वो रेडी थी मेंटली कि नहीं सिजेरियन होने के लिए, ठीक है। अभी बच्चा देखो नर्सरी में दाखिल है, उसको एंटीबायोटिक लग रही है, तो उसकी मेंटल हेल्थ खराब ही है, ठीक है।
हाई रिस्क पेशेंट्स, अच्छा वो कह रहे हैं कि कौन से पेशेंट हाई रिस्क होते हैं? ऐसे लोग जिनको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री ऑफ परप्यूरल साइकोसिस, 60% रिस्क है कि इनको परप्यूरल साइकोसिस होगा। ठीक है, सो ऐसे लोगों को आप डिलीवरी के बाद भी और एंटीनेटली भी फॉरन स्पेशल पहले ही उनको भेज दें, पेरीनेटल मेंटल हेल्थ वालों को जिनकी ऐसी हिस्ट्री हो, ताकि वो प्रॉपर केयर प्लान आपको दें कि डिलीवरी के बाद हमने क्या करना है, और अगर कोई प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशन की उनको जरूरत है आफ्टर डिलीवरी तो वो भी वो आपको बता देंगे। ठीक हो गया? हाउ विल यू असेस दिस पेशेंट? सबसे पहले हमने मेंटल हेल्थ असेसमेंट करनी होती है। मेंटल हेल्थ असेसमेंट कैसे करते हैं हम? हम्म मेंटल हेल्थ असेसमेंट कैसे करते हैं बच्चों? गेट 2 और गेट 7 के बारे में सुना है आप लोगों ने? मैडम ये सुना हुआ है लेकिन भूल जाता है कि वो कितने नहीं, नंबर्स आपने होने भूलना नहीं चाहिए। है, मुझे याद दिलाना है। जी ये हम तो पेरीनेटल मेंटल हेल्थ का अपने रिटर्न कोर्स में बिल्कुल कराते हैं, बहुत अच्छी 2-3 स्लाइडें हैं मेरे पास, तो मुझे याद दिलाना, मैं वो एक स्लाइड आपको भेज दूंगी। उसमें ना जी मैडम। दो सवाल है, गेट 2 के और गेट 7, फिर आपने जब जिसका गेट 2 पॉजिटिव हो फिर उसका गेट 7 करते हैं। ठीक है? अच्छा जी, वो जी सवालात हैं मैडम। और कुछ भी नहीं है। मेंटल हेल्थ असेसमेंट होगी ऐसे कि आप उससे सवाल पूछोगी, वो आपको यस या नो करेगी। यस है तो फिर आपने फर्दर प्रोसीड करना है, नो करना है तो फिर उसको आपने ऑब्जर्वेशन पे रखना है। ठीक है? आपने देख रहे हैं बेबी को, पेशेंट को, कि वो एंगेजमेंट आपके साथ एंगेज हो रही है इन कन्वर्सेशन, इफ शी इज हैविंग एन आई कॉन्टैक्ट विद यू और नॉट, और एनी सजेशन ऑफ रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई दैट आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है? देन यू आर गोइंग टू परफॉर्म अ रिस्क असेसमेंट फॉर कंटिन्यूइंग मैटरनल एंड नियोनेटल सेफ्टी। आपकी असेसमेंट ये भी देखेगी कि आया ये कितनी प्रोन है कि साइकोसिस में कन्वर्ट हो गई है। अगर नहीं हुई तो हो सकती है। ठीक है? या फिर मतलब कहने का मतलब ये कि अगर अभी नहीं हुई साइकोसिस में, लेकिन ये पेशेंट तो साइकोसिस में डेवलप हो गया है इसको, तो जिसका डेवलप हो गया है उनकी तो देखनी है सेफ्टी कितनी है इसकी और बेबी की, और जिनका नहीं हुआ उनमें भी देखना है कि कितने परसेंट चांसेस हैं या कितने स्वेयर सिम्टम्स हैं कि ये साइकोसिस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है? इन पर्टिकुलर आप उनसे पूछे कि डेलिबरेट सेल्फ हार्म की, उसको सुसाइड की, इन्फेंटिसाइड की थॉट्स तो नहीं आ रही। ठीक है? देन यू आर गोइंग टू आस्क देम अबाउट डिल्यूजनल बिलीव्स, और कोई भी मटर्नल, बाकी मटर्नल ऑब्जर्वेशन आप देखें माँ को कि बाकी सारी चीजें ठीक है नहीं है। ठीक है? अगर पॉसिबल है तो एक पूरा एग्जामिनेशन करें उसका हेड टू टू, इंक्लूडिंग न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। हो सकता है कोई ब्रेन में प्रॉब्लम, कोई पोस्टमार्टम कोई ऐसा इवेंट ना हो गया हो, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कोई और क्लॉट श्लॉट, जिसकी वजह से वो इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रही है। ठीक है? ऑर्गेनिक कॉजेज को हमेशा रूल आउट करना है। अच्छा, आगे लिखा हुआ भी है, टू रूल आउट एनी ऑर्गेनिक कॉजेज ऑफ एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट्स। ठीक है? और उसमें क्या क्या हो सकता है? इन्फेक्शन, एनीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, स्ट्रोक। ठीक है? तो आपने ये कहना है कि पहले मैं एक मेंटल हेल्थ असेसमेंट करूंगी, इन पर्टिकुलर आई विल लुक फॉर एंगेजमेंट, आई कॉन्टैक्ट और एनी suggestion of reaction to external stimuli that are not present. Then I will perform a risk assessment for continuing the maternal and neonatal safety. Then I will inquire about the thoughts of the deliberate self-harm, suicide, or infanticide. I will find out about any delusional belief if present. I will assess the mother completely in terms of physical examination, if possible, including a neurological examination. I will also try to rule out any organic cause of acute confusional state as she is fourth day post cesarean. Causes can include infection, anemia, electrolyte disturbance, stroke. ठीक है? समझ आ गया इस सवाल का जवाब कैसे देना है? यस मैडम। जी। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स में वी विल नर्स हर इन अ सेपरेट सिंगल रूम इफ पॉसिबल, एंड शी शुड बी हैविंग अ नर्स क्लोज टू द मिडवाइफरी स्टेशन। ठीक है? डू नॉट रिमूव द बेबी अवे फ्रॉम द मदर अनलेस द क्लियर रिस्क आइडेंटिफाई। अब हिस्ट्री में जो आपने असेसमेंट की, अगर आपको क्लियर रिस्क नहीं मिला तो फॉरन सेपरेट नहीं करना, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेंटिसाइड या होमिसाइड, सुसाइड, तो आपने बेबी को एटलीस्ट उससे अलग कर लेना है। बिकॉज अगर आप वैसे बच्चे को छीनेंगे इस कंडीशन में और अभी रिस्क नहीं था डेथ का या डैमेज का, तो फिर उसकी मेंटल स्टेट ज्यादा खराब हो जाएगी। देन यू आर गोइंग टू ऑफर सपोर्ट टू द मिडवाइफरी टीम। ठीक है? और ये जो आपने कहा बहुत अच्छा कहा सिद्रा, के साइकोसिस एक इमरजेंसी सिचुएशन है। ठीक है? आई विल नीड टू इन्फॉर्म माई कंसल्टेंट ऑफ द इवेंट्स, एंड इफ कॉजेज ऑफ एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट्स कैन बी रूल्ड आउट, तो फिर मैं रेफर करूंगी ऑन कॉल साइकेट्रिक सर्विसेज को। यानी कि हमने ऑर्गेनिक कॉजेज रूल आउट कर लिया, हमें पता चल गया ये पोस्टमार्टम साइकोसिस ही है, तो मैं अपने कंसल्टेंट और जो ऑन कॉल साइकेट्रिक कंसल्टेंट है मैं उसको इन्वॉल्व करूंगी। ठीक है? और जो मैं आपको बता रही थी ना स्पेशलाइज मदर बेबी यूनिट, ये देखो। ठीक है?
जिन हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान में तो ये सिस्टम नहीं है, हम सिर्फ कॉल्स करा लेते हैं, वैसे हम इतने पेशेंट देखते भी नहीं है साइकोसिस के, क्योंकि इंसिडेंस ही बहुत कम है, 0.1% है। तो हम हमारे पास ऐसे स्पेशल बेबी यूनिट नहीं है जहाँ पे हम इस तरह के पेशेंट्स को शिफ्ट करें जो अपने बेबी के साथ शिफ्ट होते हैं और अंडर कंबाइंड केयर ऑफ ऑब्स्टिटिशियन एंड मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट वहां पे वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको समझ आ गया। हमने सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना है, ऑन कॉल कंसल्टेंट को बुलाना है, बताना है, ऑन कॉल साइकेट्रिक कंसल्टेंट को बताना है, अनड्यू सेपरेशन नहीं करनी इफ देर इज नो क्लियर रिस्क of identified to the baby. We will nurse her in a single room if possible and close to the midwifery station and support to the support by the midwifery team to the patient. ठीक है, और कॉजेज को हमने रूल आउट कर लिया जो एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट के ऑर्गेनिक कॉजेज थे। ठीक हो गया। और मेडिकेशन हमने डिस्कस कर ली है कि हमने इनको न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशन, SSRI, TCAs, ये सारी मेडिकेशन हमने देनी है। ठीक हो गया, क्लियर, या कोई रह गई मुश्किल बात इसके अंदर? फर्स्ट क्वेश्चन एक दफा दोबारा दिखा दें। पहले वाला, इसका फर्स्ट। जी जी। पहले वाला डिफरेंस वाला था ना बेटी, ये डिफरेंस वाला था। मैडम डिफरेंस से पहले एक आपने स्लाइड दिखाई थी, हाँ, इससे वो पहले। ये स्लाइड है बेटी, ये स्लाइड। ठीक है मैडम। ठीक है जी।